بسم اللہ الرحمن الرحیم. بروک فیلڈ کالج کے ریکارڈ لیکچر سے احمد خرم آپ سے مخاطب ہوں. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا ڈیٹا کمیونیکیشن اور اس کے کمپوننٹس کو چیپٹر نمبر 3 میں، اور آج ہم انشاءاللہ اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے. اور لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے آن نیٹ ورک. ہم نے ڈیٹا کمیونیکیشن کے جو کمپوننٹس پڑھے تھے اس میں ایک انتہائی اہم کمپوننٹ ڈیٹا اٹ سیلف تھا. ایک انتہائی اہم کمپوننٹ. تو بنیادی طور پہ ڈیٹا جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن سسٹمز میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک، ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف اقسام کا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے فرام ون کمپوننٹ ٹو اندر، فرام ون مشینری ٹو اندر، جس میں ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، میں نے بات کی تھی، نومیرک ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، امیجز بھی ہو سکتے ہیں، آڈیوز اور ویڈیوز بھی ہو سکتے ہیں. تو فردر اسی کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ڈیٹا کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں جو کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہیں ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک کے اندر. یعنی ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک کس قسم کا ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیٹا، ہر قسم کا ڈیٹا جب کمپیوٹر مشینری میں ریپرزینٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ سیو ہوتا ہے الیکٹرانک ڈیوائسز کے اندر، تو یہ بائنری فارم میں ہوتا ہے، ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے، زیروز اینڈ ونز میں ہوتا ہے. یعنی کرنٹ کے لو اینڈ ہائی وولٹیجز کی صورت میں اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اور میڈیا پہ بھیجنے کے لیے اس کو میڈیا کے مطابق، یعنی میڈیا جس طرح کا ڈیٹا لے جاتا ہے، کیری کرتا ہے، اس کے مطابق کنورٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ سب قسم کا ڈیٹا کمپیوٹرز میں کیسے ریپرزینٹ ہوتا ہے؟ بائنری فارم میں، زیروز اینڈ ونز کی فارم میں. چاہے وہ ٹیکسٹ ہو، وہ نمبر ہو، وہ آڈیو ہو، وہ ویڈیو ہو، وہ امیجز ہو. ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں، ان تمام چیزوں کی ریپرزنٹیشن پہ ہم بات کر چکے ہیں. تو ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ بنیادی طور پہ الفابیٹک ڈیٹا کو کہتے ہیں، یعنی اے سے لے کے زی تک الفابیٹس، وہ چاہے اپر کیس ہوں یا وہ لوور کیس ہوں، ان پر مشتمل جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم الفابیٹک ڈیٹا کہتے ہیں یا پھر ٹیکسٹ ڈیٹا کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسٹ ڈیٹا سے کس طرح کی چیزیں ریپرزینٹ ہوتی ہیں. آپ اس میں پورا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس میں پیراگراف لکھ سکتے ہیں، آپ کا نیم، آپ کا فادرز نیم، آپ کا ایڈریس، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں الفابیٹک ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور زیرو سے لے کے اے سے لے کے زی تک جو الفابیٹس ہیں ان پر مشتمل جو ڈیٹا ہوگا، چاہے وہ اپر کیس میں ہو یا لوور کیس میں. اور میں آپ کو یہ چیپٹر نمبر 1 میں بھی بتا چکا ہوں کہ تمام کیریکٹرز جو ریپرزینٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، ان کی ریپرزنٹیشن آسکی کوڈ سے ہوتی ہے. اور آسکی کوڈ جو ہے وہ 8 بٹس پر مشتمل زیروز اینڈ ونز کا ایک ایسا فارمیشن ہے جو کسی کیریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیونکہ تمام کیریکٹرز بھی کمپیوٹر میں زیروز اینڈ ونز یعنی بائنری فارم میں، یعنی لو اینڈ ہائی وولٹیجز میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ چاہے وہ اے ہو، چاہے وہ ایس ہو، چاہے وہ ڈی ہو، اس کی ریپرزنٹیشن 8 بٹس کے کوڈ میں ہوتی ہے جس کو ہم آسکی کوڈ کہتے ہیں. اور یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہمیشہ آسکی کوڈز. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موجودہ دور میں ہم 8 بٹ آسکی کوڈ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہر کیریکٹر کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ 8 بٹس کے آسکی کوڈ میں، یعنی 1 بائٹ میں ہوتی ہے. یعنی ایک کیریکٹر کمپیوٹر میں 1 بائٹ سٹوریج لیتا ہے، کیونکہ اس کو زیروز اینڈ ونز کتنے ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ 8. یعنی لو اینڈ ہائی وولٹیجز کا جو ریپرزنٹیشن اس کو چاہیے کمپیوٹر کے اندر، وہ 8 بائنری بٹس پر مشتمل ہوتا ہے. سو ٹیکسٹ ڈیٹا کنسسٹ آف ورڈ، سینٹینسز، پیراگرافس. تو ٹیکسٹ ڈیٹا سے ورڈ، سینٹینسز اور پیراگرافس بنتے ہیں. اور ٹیکسٹ پروسیسنگ ریفرز ٹو the ability to manipulate words, lines and pages. اور کسی بھی ڈیوائس کی ٹیکسٹ پروسیسنگ ایبلٹی یہ ہے کہ آپ اس میں ورڈز لکھ کے اس کو مینیپولیٹ کر سکیں، چینج کر سکیں، پیجز لکھ سکیں، پیراگرافس لکھ سکیں. ٹیکسٹ از نارملی اسٹورڈ ایز آسکی کوڈ وداؤٹ فارمیٹنگ. اور آپ کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ ٹیکسٹ عام طور پہ آسکی یعنی 8 بٹ کوڈ میں جو انکوڈنگ اسکیم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں ریپرزینٹ ہوتا ہے. جیسے عثمان خلیل، پاکستان اسلام، یہ سب کس کی ایگزامپلس ہیں؟ ظاہر ہے یہ ٹیکسٹ ڈیٹا کی ایگزامپلس ہیں. نومیرک ڈیٹا نام سے ہی ظاہر ہے، 0 سے لے کے 9 تک ڈیجٹ پر جو ڈیٹا مشتمل ہوتا ہے اس کی فارمیشن سے جو بنتا ہے اس کو ہم نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں. اور بہت ساری انفارمیشن جو
फील्ड्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमेरिक डाटा की ज़रूरत होती है, जैसे फ़ोन नंबर है, CNIC है, और बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिक डाटा से रिप्रेजेंट होती हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। और इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ जिसको हम कहते हैं, यानी आशारिया भी आ सकता है वैल्यूज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ख़ास तौर पे जहाँ पे बात मेजरमेंट की होती है, चीज़ों को मेजर किया जा रहा होता है, तो वहाँ आशारिया में भी वैल्यूज़ आती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं। न्यूमेरिक डाटा भी जो है वो डेफिनेटली सेंड किया जा सकता है। सो न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। इट मे आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट, उसमें आशारिया भी हो सकता है जैसे मैं बात कर रहा था, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ उसमें शामिल हैं, और नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन, और पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ जो है वो ऑप्शनल होता है, पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल करें या ना करें। जैसे 10 + 5 -12 13.7 और -3 2.5, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये न्यूमेरिक डाटा के एग्जाम्पल्स हैं। इमेजेस, हम चैप्टर नंबर 1 में जब डिजिटल कैमरा को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि एक इमेज भी कंप्यूटर में जो है वो बाइनरी डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट होता है। एट लास्ट ये डिजिटल इमेज की सूरत में स्टोर होता है, यानी ये भी बाइनरी डाटा। और कैसे, वो सारी बात मैंने समझाई थी, उस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत मुझे नहीं है कि कैसे कैमरा लाइट रिफ्लेक्शन को कैप्चर करता है और उसको करंट में आल्टर करता है, और फिर जाके एक जो बाइनरी वर्जन होता है उसकी सूरत में, यानी डिजिटल फॉर्मेट में डाटा इमेज की सूरत में स्टोर होता है। तो इमेजेस आपको पता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं, उसमें ग्राफ्स भी हो सकते हैं, चार्ट्स भी हो सकते हैं, तस्वीरें भी हो सकती हैं। तो ये सारा डाटा भी जाहिर है कि ट्रांसमिट होता है और कंप्यूटर से बाइनरी फॉर्म में, फिर आगे वो करियर के फॉर्मेट के मुताबिक उसको कन्वर्ट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, और this form of data is more comprehensive and can be transmitted as a set of bits, or the bits are packed as bytes. ऑडियो के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 1 में जब हम साउंड कार्ड की बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरह सपोर्ट करता है साउंड कार्ड। वैसे तो बुनियादी तौर पे साउंड जो है वो क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। हमने बात की थी जो साउंड वेव जिसको कैरी करती है, तो ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एक एनालॉग सिग्नल है। लेकिन इसके रिप्रेजेंटेशन किस तरह ADC की मदद से, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से फिर बाइनरी में हो जाती है, वो उस पर भी हमने बात की थी। तो ये भी बुनियादी तौर पे बाइनरी बिट्स की सूरत में ही स्टोर होता है कंप्यूटर्स में, और कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो कहते हैं साउंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। तो किसी भी किस्म का साउंड हो सकता है, वो चाहे कोई बीट हो, किसी परिंदे के चहचहाने की आवाज़ हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो एट लास्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बाइनरी में होती है। वीडियो के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी जब हम बात कर रहे थे वीडियो अडॉप्टर्स की। तो मैंने आपको तफसील से बताया था कि वीडियो बुनियादी तौर पे स्टिल इमेजेस का ही, यानी तस्वीरों का ही एक ऐसा सीक्वेंस होती है जो आपको एक रैपिड पेस पे शो किया जाता है, और रैपिड पेस पे उसके शो करने की वजह से वो आपको फुल मोशन वीडियो जो है उसका इफेक्ट देती है। और बुनियादी तौर पे ये होती स्टिल इमेजेस की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कैमरा जब कैप्चर करता है किसी वीडियो को तो वो भी अलग अलग इंडिविजुअल इमेजेस को कैप्चर करता है, तस्वीरों को कैप्चर करता है, लेकिन इतने पेस पे कैप्चर करता है कि वो हमें फुल मोशन वीडियो जो है वो लगती है, और फिर इसी पेस पे वो हमें शो करवाई जाती है। तो जब इमेजेस जो है वो बाइनरी में रिप्रेजेंट होते हैं तो ज़ाहिर है वीडियो भी, क्योंकि उनका सीक्वेंस है, तो बाइनरी में ही रिप्रेजेंट होती है कंप्यूटर्स के इनसाइड, और ये भी ट्रांसमिट की जा सकती है कम्युनिकेशन मीडिया पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सारे एग्जाम के डाटा से आप बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर भी हैं, और दोबारा मैंने आपको इनसे फेमिलियराइज करवा दिया कि ये सारा डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स, अभी भी बात कर रहा था मैं और कई बार बात कर चुका हूँ कि जीरोज एंड वंस की फॉर्मेशंस में, यानी बाइनरी फॉर्मेट में डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। आपने इसको पढ़ लेना है क्योंकि एक्सेलरेटेड सिलेबस में हमारे ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको पढ़ लेना है। इनकोडिंग स्कीम्स जो गुजरे ज़मानों में एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता था इस चैप्टर से, उसको भी यहाँ एक्सेलरेटेड सिलेबस में शामिल नहीं किया गया। तो हम आगे चलते हैं और एक ऐसे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसकी अभी यानी रियल टाइम लेक्चर्स में ऑफ डेज से पहले ही मैं बात कर रहा था, ट्रांसमिशन मोड्स। और मैं आपको बता रहा था कि डाटा जब ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ट्रांसमिशन मोड्स जो है वो 3 इकसाम के होते हैं।
इट डिपेंड्स कि आपके नेटवर्क रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसा नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। क्या आप एक तरफा डाटा भेजना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि डाटा सिर्फ सेंड किया जाए या सिर्फ रिसीव किया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि सेंड भी हो और रिसीव भी हो और लेकिन एक वक्त में एक तरफा, और या फिर आप चाहते हैं कि सेंड भी हो डाटा और रिसीव भी हो, आपकी नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, तो फिर जाहिर है कि आपको वैसा ही मीडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो आपके जो ट्रांसमिशन मोड है उसको सपोर्ट करे। कुछ मीडियाज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक तरफा डाटा ले जाते हैं, कुछ मीडियाज़ ऐसे होते हैं जो बोथ साइडेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको पता है, हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन मीडिया जो मोड्स हैं वो 3 होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा क्योंकि आपको मैं कई बार इनके बारे में बता चुका हूँ। सिंप्लेक्स मोड में आपको पता है कि एक तरफा कम्युनिकेशन होती है, यानी अगर डाटा जा रहा है तो फिर सिर्फ जाता है और अगर आ रहा है तो फिर सिर्फ रिसीव होता है, यानी वन साइडेड कम्युनिकेशन उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो उसको हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। और सिंप्लेक्स मोड की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स जो होते हैं वो सिर्फ भेजे जाते हैं और वो ऐसा मीडिया इस्तेमाल हो रहा होता है जो वापस कम्युनिकेशन को रिसीव नहीं कर सकता है। तो कहते हैं सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन। दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि आपने मीडिया ऐसा इस्तेमाल किया होता है जो वापस कम्युनिकेशन को रिसीव नहीं कर सकता और अगर रिसीव कर रहा है तो सेंड नहीं कर सकता। इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट, तो जैसे वन वे रोड होता है इसी तरह से ये कम्युनिकेशन होती है। कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंजेस, अगर जा रहा है डाटा तो फिर वो जाएगा और अगर आ रहा है तो फिर आएगा, चेंज नहीं होता फ्लो ऑफ डायरेक्शन। अ डिवाइस विद सिंप्लेक्स मोड कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा। एग्जाम्पल इसकी ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अभी मैं बात कर रहा था, तो सिर्फ ट्रांसमीटर से एंटेना तक सिग्नल आते हैं, वापस नहीं जाते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड में आपको पता है कि दो तरफा कम्युनिकेशन तो होती है बट नॉट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में नहीं, बल्कि अगर यानी डाटा जब जा रहा है तो उस वक्त रिसीव नहीं होता और जब रिसीव हो रहा है तो उस वक्त फिर जा नहीं सकता। जैसे वॉकी टॉकी पे एक वक्त में एक तरफा कम्युनिकेशन हो सकती है और उसके लिए ओवर का सिग्नल फिर इस्तेमाल किया जाता है ताकि अब यहाँ से बात जो है वो मुकम्मल हो गई है, दूसरी तरफ से सिग्नल जो है वो रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं, उसके लिए आप ओवर का सिग्नल, अगर दोनों तरफा कम्युनिकेशन एक साथ होगी तो दोनों सिग्नल कलाइड कर जाएंगे। इंटरनेट सर्फिंग भी इसकी एग्जांपल है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट पे जब आप सर्फिंग कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स सर्फ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी पहले रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक, फिर वहाँ से डाटा आता है और तब तक जब तक डाटा आपके पास वापस नहीं आ जाता आप मज़ीद रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, इट इज़ ट्रांसमिटेड एज वन वे एट अ टाइम, तो एक वक्त में एक तरफा। कहता है डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, सेंड भी हो सकता है रिसीव भी हो सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। इंटरनेट सर्फिंग हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है, वॉकी टॉकी की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब आप समझ गए होंगे कि फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, दो तरफा कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, जैसे मोबाइल फ़ोन पे होती है, टेलीफोन पे होती है, आप एक ही वक्त में डाटा भेज भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मीडिया ऐसा होता है जिसमें आपके पास सेंडिंग लाइन अलग होती है और रिसीविंग लाइन अलग होती है। जैसे आप टेलीफोन की वायर को कभी देखें तो उसमें दो कॉपर वायर्स होती हैं जो एक डाटा ले जाने के लिए और एक डाटा रिसीव करने के लिए होती है। तो इस तरह का अगर मीडिया हो तो ऐसा हो सकता है एट द सेम टाइम उसको रिसीव भी कर सकें और भेज भी सकें। Full duplex mode can travel in both direction. Data can travel in both direction. Full duplex mode is faster way of transmission as compared to half duplex mode. ज़ाहिर है डाटा जब एक साथ जाएगा भी और रिसीव भी होगा तो कम्युनिकेशन तो फास्टर होगी, टाइम आधा सर्फ होगा, टाइम इज़ नॉट वेस्टेड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो। टेलीफोन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, बोथ पर्सन्स कैन टॉक एट द सेम टाइम। सो ये हमारे कम्युनिकेशन मोड्स थे और डाटा की जो टाइप्स थी उनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इससे आगे हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। आप रोज़ का काम रोज़ देखिएगा बराए मेहरबानी, और जो है वो इकट्ठा नहीं करना काम को कि एक साथ बहुत सारा हो जाएगा, या आपने इन छुट्टियों को जो है वो एज छुट्टियाँ एंजॉय नहीं करना, साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते भी रहें। आप घर रहें, महफूज रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।